الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی اور کبریائی، جو سارے کائنات کا مالک اور حاکم ہے، نیز درود و سلام کے بے شمار انگن درود و سلام کے نذرانے ہوں عبداللہ کے لقب جگر، آمنہ کے نور نظر، امام کائنات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مجلس، میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، 15-20 منٹ میں بہت ہی مختصر وقت ہے. موضوع ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. ہم اور آپ اس بات کو بحسن خوبی جانتے ہیں کہ کچھ شہرت یافتہ اور مشہور ہونے کے چکر میں یہ بات کہی کہ اسلام یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید کی چند آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ دہشت گردی کی طرف آمادہ کرتا ہے، معاذ اللہ. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کیے ہوتے اور سیرت کی کتابوں کو اگر ہم پڑھتے تو ایسا نہ کہتے. آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ دین اور اسلام لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو یہی عرب کے لوگ جو آپ کے دوست تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مال و زر چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے رہے ہیں. اگر آپ دنیا کی سرداری چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، لیکن دعوت دین اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیا جائے اور دنیا کی ساری دولت میرے قدموں پر نچھاور کر دیا جائے، ہم اس دعوت سے مذہب اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اتنا کہنا تھا کہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. جس راستے سے آپ چلتے آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ پر پتھر برسائے گئے. حاضرین گرامی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ دی جاتی اور آپ کے گردن مبارک پر چادر ڈال کر کے گھسیٹا جاتا. یہ عورتیں بھی پیچھے نہ ہٹی قریش کی آپ کو تکلیف دینے میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ لیا نہیں لیا.
किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी का बुरा नहीं चाहा। आप देखें कि बुखारी शरीफ की रवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। कुफ्फारे मुशरिकीन और ताइफ के जो लोग थे आपकी एक बात न सुनी, आपके पीछे ओबाशों और बदमाशों को लगा दिया और आपको इतना मारा कि आप बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके साथ में थे, आपको उठा करके एक बाग में ले गए, आपके चेहरे मुबारक पर पानी का छिड़काव किया, आपके जिस्म से निकलने वाले खून को पोंछते जाते और रोते जाते कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर में रहने वाली ये कौम, इनका दिल पत्थर हो गया। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बददुआ कर दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन ताइफ वालों को हलाक और बर्बाद कर दे, इनका नामो निशान मिट जाए। वो आका मदनी जो रहमतुल लिल आलमीन है, अपने खून आलूद हाथ को ऊपर उठाया और कहा कि अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये कौम अभी मुझे नहीं जानती। बद्दुआ के लिए नहीं, दुआ दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम ये तलवार से पहला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी गई, उसके बाद आप देखें कि एक यहूदी आपका मेहमान होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर उसको दे देते हैं, एक यहूदी को बिस्तर दे देते हैं। रात की तारीकी हुई, सन्नाटा छाया, वो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर गिलाजत करके भाग जाता है। जब दूर जाता है तो उसे याद आता है कि मैंने अपनी तलवार तो बिस्तर पे छोड़ दिया हूं। वो आता है, दूर खड़ा होता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं तलवार लेने चाहता हूं तो मेरा सर तो जिस्म से जुदा हो जाएगा। लेकिन अरब के लोग तलवार के बड़े धनी होते हैं। उसने फैसला कर लिया मेरी जान रहे या न रहे, मैं तलवार लेकर के ही रहूंगा। वो चला तो देखता है एक अजीब सी कैफियत कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बहस हो रही है, तकरार हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिस्तर को छोड़ दे, आप अपने हाथ से इसकी गिलाजत को इस मुनाफिक, इस यहूदी के ना साफ करे, मैं साफ कर देता हूं। आपका खादिम मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर पीछे हट जाओ, ये मोहम्मद का मेहमान था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान बनकर के आया था, मेरा हक बनता है कि मैं इसकी गिलाजत को अपने हाथ से साफ करूं। अल्लाह पर मेहमान की इतनी कदर। वो दूर से ये सारा माजरा देख रहा था, सुन रहा था, दौड़ता हुआ आया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कपड़े मुबारक में जगह दे दीजिए, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। और वो शख्स सच्चे दिल से कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। ये है इस्लाम की तालीम, ये है इस्लाम की तालीम। अगर होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़दोकोब करते। वाक़यात भरे पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है मैं ज्यादा आगे बहस नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। जब मक्का फतेह हुआ, मक्का सन 8 हिजरी में फतेह हुआ, यही मक्का जब सहाबी किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर लोगों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने मुबारक पर भारी भरकम पत्थर रख दिया जाता, कहा जाता कि ऐ बिलाल तुम इस्लाम से इनकार कर दो, इस्लाम को छोड़ दो। जहां हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूली के फंदे पे लटकाया गया, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां कत्ल की साजिश की गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, कितने औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। इस मुनाफिक और मुशरिकीन और कुफ्फार ने इतना जुल्म ढाया था सहाबी किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर कि 3 साल तक ऐसी जगह कैद कर रखा था शेब अबी तालिब ने कि सहाबी किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
भूख की वजह से सूखे पत्ते चबाने पर मजबूर हो गए, बाइकाट कर दिया। लेकिन जब मक्का फतेह होता है, मुसलमानों के हाथ में होता है, आप ये जान ले, जब कोई शहर, कोई मुल्क फतेह होता है, कोई बादशाह फतेह करता है, तो हंसते खेलते शहर खंडर में तब्दील हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती है, लोग बदला लेने में आ जाते हैं। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतेह होता है, निहायत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सर को झुकाए हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपने घर में कैद हो जाए उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो शख्स खाने काबा में मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, और कोई शख्स अगर यहाँ से भागेगा तो उसका पीछा नहीं किया जाएगा, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मक्का फतह होता है, मक्का फतह होने से पहले सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हाज़िरीन गिरामी, कोई होता तो आप खुद सोच सकते थे कि बदला लिया जाता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमंग के मारे कहने लगे कि ऐ लोगों, ऐ अबू जहल के रसाकारों, अबू लहब के शागिर्दों, ये सुन लो, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवारें थी, हमारी गर्दनें थी, आज हमारी तलवारें होंगी और तुम्हारी गर्दनें होंगी। हाज़िरीन गिरामी, आप ये सोच लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से मक्का में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, सबके सब आजाद हैं। और इन मक्का के लोगों से कह दो कि सबके सब किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, सबके सब आजाद हैं। मक्का की माओं से कह दो कि उनकी ममता नहीं छीनी जाएगी, मक्का की बहनों से कह दो कि इनके इज्जत और नामूस पर हमला नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस्लाम ये अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम ने जो तालीम दी, मजहब इस्लाम ने जो तालीम दी, हमको और आपको उस तालीम पे अमल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।